Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Mohammed Hassan, and I'm currently here as a senior demonstrator in forensic medicine. Recently joined. Today's lecture is on vegetable poisons. Vegetable poisons के ऊपर हम बहुत briefly बात करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में आपको questions जो हैं वो ज़्यादा नहीं आते होते हैं. Mostly इस पे जो निसार होता है examiner का that's on the MCQs और उसमें ज़्यादातर जो चीज़ पूछी जाती है that is active principles. ये एक लिस्ट है of the poisons that you people must know. इसके अंदर तमाम poisons की एक लिस्ट दी गई है, इसको हम briefly cover करेंगे. The vegetable poisons they mostly act as irritants due to the presence of certain active principles. Active principle एक basically constituent chemical होता है उस vegetable poison के अंदर जो कि ये symptoms cause करवाता है जिसमें आपके inflammation, vesication, persolation वगैरह सारी चीजें जो है वो आती हैं और internally they mostly cause gastric irritation. The poisoning, it causes severe exhaustion and ultimately that leads to collapse and finally death of the patient. सबसे पहले it's Ricinus communis, जिसको हम castor oil plant कहते हैं. This is grown all over Pakistan. Seeds की जो इनकी शक्ल होती है वो oval है. It's brown in color. It resembles proton seeds. Mostly they're about 1 centimeter long. और इसके अंदर जो active principle है that is ricin, which is a toxalbumin. Toxalbumin होता क्या है? It's a toxic protein that acts like a bacterial toxin, causing agglutination और RBCs का basically ये breakup करवाता है. ज़्यादातर अगर आप इसको raw state में ingest करेंगे तो it can be poisonous. Signs and symptoms जो इसमें ज़्यादातर नजर आते हैं उसमें throat के अंदर एक burning sensation होती है, saliva का ज़्यादा आना, nausea. There's painful vomiting, colicky abdominal pain as well, along with bloody purging. Purging basically vomiting like symptom होता है जिसके अंदर blood का ज़्यादा amount होता है in the vomitus. Dust जो इसके residue से बनती है that causes dermatitis, conjunctivitis. ये mostly आपकी eyes और आपकी skin के ऊपर जो है वो symptoms आते हैं, along with asthma और allergic आपके जो lungs हैं उसके ऊपर भी इसके effects आपको नजर आएंगे. Fetal dose और fetal period is 6 milligrams, यानी कि 10 seeds are enough to kill someone. Or 1 to 2 days, it can go up to 3 to 4 days as well. As such, there is no specific antidote present for ricin poisoning. इसलिए इसका treatment जो होता है वो ज़्यादातर symptomatic ही किया जाता है. पोस्टमार्टम के अंदर जब आप देखेंगे इंटरनली डिसेक्शन पर तो आपको स्टमक के अंदर जो है वो सीड्स के छोटे-छोटे फ्रेगमेंट्स नजर आएंगे आपको. अदर देन दैट इंटेस्टाइन भी आपको इन्फ्लेम नजर आएगी और हेमरेजिक आपको लीजन्स नजर आएंगे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर. As far as the medical legal aspects are concerned, mostly it is homicidal in children or accidental. Homicidal intent के साथ भी ये दिया जा सकता है, लेकिन it's very rare occurring. Croton tiglium या जिसको आम जुबान में जमाल गोटा का नाम दिया जाता है. The seeds in the oil of Jamal Gota, they are extremely poisonous. They resemble small castor seeds जो हमने पीछे भी देखे थे. ये भी blackish brownish से कलर में होते हैं. और इनका जो एक्टिव प्रिंसिपल है is crotin. This is also a toxalbumin. ये भी irritant का काम करता है. Blistering मौजूद होती है. GI irritation जो होती है इसमें भी होती है. And there is also vomiting जैसे कि हमने पिछले उसमें poisons में देखा. इसका जो fetal dose है that's usually 20 drops. या अगर कोई बंदा सालम 4 seeds ले लेता है, it can also be dangerous. 4 to 6 hours के अंदर इसका fetal period होता है और this can lead to the death of the person taking it. Treatment इसके अंदर कोई ऐसा specific नहीं हमारे पास फिलहाल मौजूद. इसको हम general principles के ऊपर भी treat करते हैं जिसमें stomach wash है और आपकी बाकी चीजें जो आती हैं. Postmortem appearances भी इसकी जो होती हैं that's usually similar to Ricinus communis और ज़्यादातर ये homicidal intent के साथ दिया जाता है. Third one is Abrus precatorius, जिसको हम रत्ती भी कहते हैं आम जुबान में. If you guys can appreciate this red colored seed, red और black color के इसके seeds होते हैं. छोटे मटर के दाने की जैसे इसकी शेप होती है ज़्यादातर और इसमें जो एक्टिव प्रिंसिपल है that's aspirin, which is also a toxalbumin. और इसकी जो resemblance होती है वो बहुत ज़्यादा snake bite की जैसे होती है, जैसे viper snake की bite की जैसे होती है. It's tasteless, it's odorless. As far as signs and symptoms are concerned, इसमें localized area में there is painful swelling. ठीक है, ecchymosis होता है. Ecchymosis is pretty much similar to bruising. Necrosis होता है, vertigo, चक्कर आते हैं patient को. It can also lead to cardiac arrhythmia as well.
The fetal dose is 1 to 2 seeds by mouth, या 90 to 120 milligrams is sufficient to kill somebody. Fetal period इसका 3 से 5 दिन होता है, यानी कि 3 से 5 दिन के अंदर अंदर it can cause the death of the patient. Treatment इसके अंदर there is anti-abrin, which is an anti-toxoid of sorts. Symptomatic treatment भी इसके अंदर जो है वो दिया जाता है ज़्यादातर. पोस्टमार्टम में इसकी जो पेरेंट्स होती है, जिस जगह के ऊपर ये लोकली अप्लाई किया गया है, तो इट इज swollen, inflamed and necrosed. Hemorrhagic पैचेस जो होते हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, आपको स्किन के ऊपर नजर आ जाएंगे, इंटरनल ऑर्गन्स पे नजर आएंगे आपको. मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स में यहाँ पे लिखा हुआ टर्म एक सुईज लिखा हुआ है. सुई बेसिकली पुराने दौर के अंदर जानवरों को मारने के काम आता था. एब्रस प्रिकटोरियस, इसकी छोटी छोटी बारीक सी नीडल की जैसी प्रोजेक्शंस बनाई जाती थी दैट वर यूज्ड टू किल डोमेस्टिक एनिमल्स, जिसमें ये आपका कैटल वगैरह आ जाते हैं. ज्यादातर एरो पॉइजन्स के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता रहा पुराने दौर में, जंगों के दौरान खास तौर पे. कोलोसिंथ, या जिसको बिटर एप्पल या इंद्रियानी का नाम दिया जाता है आम जुबान के अंदर, this is basically obtained from the dried pulp of apples, या apples जो stale हो जाते हैं उसके अंदर यूज होता है ये. Active principle is ricinous glycosides. Signs and symptoms इसके ज्यादा नहीं है. There is severe abdominal pain. Vomitus जो होता है वो पीले रंग का होता है, yellowish watery stools होते हैं इसके अंदर. Ultimately the patient collapses और बाज़ औक़ात उसमें जो है वो मौत भी वाक़या हो सकती है. Fetal dose 1 to 2 grams ज़्यादा नहीं है. Fetal period is approximately 1 to a few days, 24 hours यहाँ लिखा हुआ है. General principles जो होते हैं वो follow किए जाते हैं इसको treat करने के लिए. There is no such specific antidote as yet. Postmortem की जो appearance होती है उसके अंदर alimentary tract जो GI है सारा inflamed आपको नजर आएगा. Kidneys, urinary जो आप urinary tract है वो inflamed नजर आएगा. As far as the medical legal aspects are concerned, this can be used for suicidal purposes. Other than that, ये abortifacient के तौर पे भी काम करता है. And by abortifacient, it means कि this can cause abortion. Ergot या ergot या जो भी आप इसको pronounce करना चाहते हो, this basically grows on rye, barley, wheat वगैरह. ये जो दाने होते हैं इसके black color के यहाँ पे आप देख सकते हो इस picture के अंदर. बेसिकली इसके ऊपर ग्रो करता है. इट फॉर्म्स अ डार्क पर्पल मैस, और ये जो डार्क पर्पल मैस है इसको सुखाते हैं और इसको पाउडर की फॉर्म में क्रश कर दिया जाता है. इसके बाद दिस इज यूज्ड एज अ पॉइजन. द एक्टिव प्रिंसिपल इन दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस इज अर्गोटॉक्सिन. अर्गोटामीन का शायद आप लोगों ने नाम सुना हो. अर्गोमेट्रीन के तौर पे भी इसका जो है वो एक्टिव प्रिंसिपल आता है. इट्स गॉट अ स्टिमुलेंट एक्शन मेनली ऑन द यूट्रस. साइंस एंड सिम्टम्स के अंदर ज्यादातर आपको इसमें देयर इज थ्रोट इरिटेशन, सिवियर थर्स्ट होती है, देयर इज पेन इन द एब्डोमेन. अदर देन दैट देयर इज अ टिंगलिंग सेंसेशन इन द हैंड, फीट, मसल क्रैम्प्स होते हैं, चक्कर आते हैं. और अगर इसकी डोज सफिशिएंट हो तो इट कैन आल्सो लीड टू अबॉर्शन. What is ergotism? Ergotism का phenomena is basically the ingestion of ergot containing flour. आटे में चूंकि ज्यादातर ये यूज होता है, इसीलिए अगर आप वो आटा इस्तेमाल करते हैं तो दैट कैन लीड टू ergotism. इसकी दो टाइप्स हैं फर्दर, convulsive ergotism and gangrenous. Convulsive के अंदर mostly there are changes in the CNS, और ये changes में आपको drowsiness मिलेगी, headache नजर आती है. It can also lead to madness. Cutaneous sensations as if ants are creeping under the skin. जो खाने वाला है या जिसको कि ये दिया गया है उसको ऐसे फील होता है कि जैसे उसकी स्किन के ऊपर जो है कुछ चीज, कुछ कीड़े चल रहे हैं उसके ऊपर. Gangrenous ergotism is basically vasomotor disturbances, जिसमें there is pain and numbness और intestinal gangrene जो होती है. It is also seen. The fetal dose is very low. It's up 1 gram. Fetal period is approximately 1 day. Treatment जब आपने करना है तो उसके अंदर आपने stomach और bowel जो है उसको empty करके through any gastric lavage या gastric tube के through, और साथ में आपने symptomatic treatment जो है वो करना होता है. पोस्टमार्टम के अंदर आपको इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, लिवर, स्टमक के अंदर आपको सिवियर कंजेशन मिलेगी. आपको इसके पार्टिकल्स जो हैं वो आपको स्टमक के अंदर नजर आएंगे. other than gangrene of the fingers and toes as well. Medical legal importance इसकी जो main है वो ये है कि this is used as an abortifacient. Next comes capsicum seeds या red chilies, आम जुबान में जो उसको कहते हैं लाल मिर्च. ठीक है. It's got an extremely pungent smell. Taste इसका बहुत तेज होता है. The important thing about this thing is कि it's got the active principle of capsaicin.
साइंस एंड सिम्टम्स के अंदर सबको पता होगा कि इट कैन कॉज सिवियर इरिटेशन, देयर इज बर्निंग, ठीक है, लैक्रिमेशन, आंखों से पानी बहुत ज्यादा आता है, रेडनेस जनरलाइज्ड होती है, देयर इज अ बर्निंग सेंसेशन इन द माउथ, थ्रोट, esophagus, स्टमक, जहां जहां ये जाता है ऑब्वियसली इट कैन cause the symptoms. जहां तक इसके ट्रीटमेंट का ताल्लुक है तो if this is applied onto the skin it should be washed with plenty of water. symptomatic treatment करें. The tongue should be scraped by a blunt edge अगर किसी ने ज्यादा amount ingest कर ली है, और अगर खुदा ना खास्ता आंखों में चला गया तो the eyes should be washed with saline. एंटीबायोटिक्स दें और cortisone drops या steroid जिसको आप आम जुबान में कहते हो. मेडिको लीगली इट इज यूज फॉर टॉर्चर, और अगर ये आंखों में, कान में और इन जगहों पे चला जाए यूरेथ्रा वजाइना के अंदर तो इट कैन कॉज सिवियर इरिटेशन. द नेक्स्ट इज सेमिकार्पस एनाकार्डियम, या जिसको हम आम जुबान में मार्किंग नट कहते हैं. इसको मार्किंग नट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसकी जो इंक है उसको यूज किया जाता है टू मेक स्पेसिफिक मार्क्स ऑन द क्लोथ. जो लोग कपड़े धोते हैं, सिलाई का काम जो करते हैं वो ज्यादातर यूज करते हैं इसको. सेमी कार्पोल इज द एक्टिव प्रिंसिपल जो कि इसके अंदर मौजूद होता है. साइंस एंड सिम्टम्स जहां तक इसके हैं तो उसमें अगर ये स्किन के ऊपर आता है तो इट कैन कॉज सिवियर इरिटेशन, छाले पड़ जाते हैं. इसके अलावा अगर कोई इंजेक्शन की कोशिश करे इसकी तो इट कैन लीड टू ब्लिस्टर्स इन द माउथ एंड थ्रोट एज वेल, gastroenteritis और dyspnea cyanosis tachycardia. Ultimately that can lead to coma and finally death. The fatal dose is 5 to 10 grams. The fatal period is 1 to 2 days approximately. As far as the treatment is concerned, इसके अंदर mostly आप symptomatic treatment देते हो, gastric lavage हो गया, steroid cover हो गया. If this is applied externally, the parts जहाँ पर इसका exposure हुआ है, they have to be washed with plenty of warm water. पोस्टमार्टम के अंदर आपको जो भी इसके अंदर ब्लिस्टर्स मिलते हैं, दे हैव टू बी प्रिजर्व्ड एंड दे हैव टू बी सेंट टू पीएफएसए, दैट्स द पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, ताकि वहां से इसको एक्सट्रैक्ट करके पॉइजन की कंफर्मेशन जो है वो की जा सके. मेडिको लीगली दिस इज यूज मोस्टली फॉर अबॉर्शन. अदर देन दैट ये आर्टिफिशियल ब्रूजिंग भी चूंकि कॉज करता है तो इसमें फॉल्स चार्जेस या कोई अनगेन करने के लिए, फॉल्स चार्जेस लगाने के लिए आर्टिफिशियल ब्रूजिंग जो है वो इससे के थ्रू की जा सकती है. एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इज आल्सो देयर. नंबर 8 पर वी गॉट कैलोट्रोपिस और मदार. इसकी दो टाइप्स होती हैं, कैलोट्रोपिस जाइगैंटिया, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा. ये फ्लावर्स के अंदर अगर आप लोग यहाँ देख सको तो इस तरह के इसके फ्लावर्स होते हैं जिसमें से इसका जो है वो वाइटिश सा एक्सट्रैक्ट होता है, उसको निचोड़ा जाता है. और इसके अंदर जो एक्टिव प्रिंसिपल्स मौजूद हैं, दे आर कैलोटॉक्सिन, कैलोट्रोपिन एंड कैलेक्टिन. दे आर ऑल प्रेजेंट हियर in the form of active principles. As far as the signs and symptoms are concerned, it can cause severe conjunctivitis. जिस जगह पर ये लगेगा जहाँ पर, तो it is going to cause reddish skin. Other than that, it's going to cause severe burning pain in the throat. Convulsions भी आती हैं at later stages, convulsions, और finally they can lead to collapse and ultimately death. The fatal dose is uncertain. As such, इसके ऊपर कोई material फिलहाल मौजूद नहीं है. 12 hours are sufficient for this poison to act on the person and kill him. As far as the treatment is concerned, gastric lavage बहुत important है इसके लिए. Symptomatic treatment दिया जाता है इसके अंदर. पोस्टमार्टम के अंदर you will very clearly find dilated pupils और पूरा elementary GI tract जो है आपका वो red और inflamed हुआ होगा, और अगर डोज ज्यादा है तो it can also cause stomach perforation. Brain और meninges में भी ये जा सकता है. As far as the medical legal aspects are concerned, this is mostly used for infanticide, यानी कि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं या उनसे जो ऊपर वाला 1 साल का एज ग्रुप है उनको मारने के तौर पे ये काम आता है. It can also be used as an abortifacient and can produce artificial bruises. Suicidal or homicidal usage भी है इसका, but it's not much documented in detail. लास्ट वन इज प्लम्बागो रोजिया, जिसको लाल चित्र, और प्लम्बागो ज़िलेनिका जिसको सिंपल चित्र कहते हैं. दोनों को डिफरेंशिएट करना यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा बिकॉज ये जो चित्र है दिस इज बेसिकली वाइट इन कलर, और ये इसके जो छोटे ग्रैन्यूल्स हैं दैट्स लाल चित्र. प्लम्बागिन इज द मेन एक्टिव प्रिंसिपल जो कि इसके अंदर मौजूद है. इफ this thing is applied on the skin, उसके ऊपर vesicles बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं, लाल हो जाती है वहाँ पर. It can cause severe contraction of the heart, intestines और uterus, और uterus के इसी action की वजह से this is used as an abortifacient as well. Fatal dose or fatal period is uncertain, और as far as the medical legal aspects are concerned, मैंने जैसा पहले बताया कि it can be used as an abortifacient, artificial bruising के लिए भी use होता है ये, ठीक है, and it's extremely rare to be seen in homicidal cases.